Bismillahirrahmanirrahim. This is Zohaib Niazi, and the subject that we have to discuss today is principles of accounting. First of all, before moving on to the course outline, let me tell you about the paper pattern of the Federal Board. There are 20 MCQs consisting 20 marks, then short question consists of 30 marks. You have to attempt 10 short question answers out of 12. It means that each short question consists of 3 marks. After that, numerical portion is about there are 2 numericals out of which you have to attempt one numerical that is compulsory and that consists of 20 marks. Then there is section B. There are 4 numericals. You have to attempt 3 numericals and each numerical consists of 10 marks. So if we total these marks, they consist of 100 marks. So the total paper consists of 100 marks. Now moving on to the course outline, first of all, let me tell you that the recommended book for Principles of Accounting Part 1 is by Sohail Afzal. The course outline consists of 15 chapters. There are total 15 chapters in the book, and short question answers and MCQs can appear from any chapter. So we have to discuss all the short question answers and MCQs of all the chapters. But for numericals, there are certain chapters from which numericals appear. In some of the chapters, there are no numericals, and from some chapters, we have to do the selective course. So, moving on to the course, first of all, we will discuss chapter number 1. In chapter number 1, the topics to be discussed are about the basis of accounting, what is bookkeeping. There are certain concepts of accounting, branches of accounting. So we will discuss it one by one. So this chapter totally consists of short question answers. There is no numerical in this chapter. So as you see on your screen, there are short question answers about chapter number 1, and its name is Introduction. So first definition is define accounting. What accounting is? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing the business transactions and interpreting the results thereof. सबसे पहली चीज़ ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं और बिजनेस को. बिजनेस क्या होता है कि कोई भी लीगल एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं उसको हम बिजनेस कहते हैं. यानी यू कैन डिफाइन इट दैट एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन उर्दू में कहते हैं लेन देन को, जो दो लोगों के दरमियान जो लेन देन होता है, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन. सो इफ वी कंबाइन दीज टू वर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इट मींस दैट कारोबार का लेन देन और कारोबारी लेन देन. सो इफ यू कैन सी दैट इट इज रिटन हियर दैट इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. सबसे पहले कारोबार के लेन देन को हमने रिकॉर्ड करना होता है, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर हो, चाहे वो आप रजिस्टर पे रिकॉर्ड कर रहे हो या किसी भी सूरत में आप उसको लिख रहे हो, तो वो रिकॉर्डिंग होती है. सबसे पहले कारोबार के लेन देन को आप रिकॉर्ड करते हैं. सेकंड इज क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग किसको कहते हैं कि जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको एक जगह लिख लेते हैं. जैसे सपोज आपने आज किसी से चीज़ें परचेज की तो वो सारा परचेजेस का हिसाब आप अलग रखेंगे, और जो आपने सेल्स की आज के दिन वो आप उसका हिसाब अलग रखेंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफाइंग, यानी कि हर चीज़ को अलग अलग रिकॉर्ड करना. देन है समराइजिंग. समरी किसको कहते हैं कि उस चीज़ का खुलासा बनाना. अब लेट सपोज कि आज मैंने 1000 रुपये की चीज़ें परचेज़ की और मैंने 5000 की सेल की, तो दैट मीन्स कि ये मैंने अब समरी बना ली कि ये मेरी टोटल परचेजेस हैं, ये मेरी टोटल सेल्स हैं. और लास्ट पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. लास्ट पे इस चीज़ का हमने रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है. अब जब भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो आप किस लिए कर रहे होते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए. तो आपने देखना होता है एक टाइम पे, साल के बाद, महीनों के बाद, या किसी भी टाइम के आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है, आइदर वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. तो आपने, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने 5000 की सेल की, 1000 की परचेजेस की, तो दैट मीन्स कि आपको 4000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो आपने इंटरप्रेट कर लिया उसका रिजल्ट. तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग. यानी कि अगर हम इसको दोबारा से देख लें तो कारोबार के लेन देन को सबसे पहले रिकॉर्ड करना, देन उसकी क्लासिफिकेशन करना, फिर उसका खुलासा बनाना, समरी बनाना, और लास्ट पे उससे रिजल्ट फाइंड आउट करना. ये पूरा प्रोसेस जो है वो अकाउंटिंग कहलाता है. सेकेंड डेफिनेशन इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग में लिखा हुआ है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर. बुक कीपिंग में ये वर्ड है मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस.
मॉनिटरी किसे कहते हैं? पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन पैसे में हो उसको हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में करते हैं। तो जब आप कोई भी कारोबारी लेन देन, जो पैसे का लेन देन होगा, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर मैनर से रिकॉर्ड करेंगे तो वो प्रोसेस आपका बुक कीपिंग कहलाएगा। जैसे आप जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा बुक कीपिंग कहलाता है, जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। Third is accountancy. Accountancy is the practice of recording, classifying and reporting on business transactions for a business. Accountancy basically क्या है कि ये आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्लासीफाई करते हैं और फिर बिजनेस की ही ट्रांजैक्शंस पे आप रिपोर्ट्स देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस अकाउंटेंसी कहलाता है। यानी कि ये अकाउंटेंसी इज़ बेसिकली मोर देन द अकाउंटिंग। ये इससे एक फार कंसेप्ट है कि पूरा जो हम रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग और रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स लिखा हो या मर्चेंडाइज एक ही चीज़ है। थिंग्स विच हैव बीन परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पज आर नोन एज गुड्स। के जो भी चीज़ें आप किस लिए परचेज करते हैं या किस लिए मैन्युफैक्चर या बनाते हैं, फॉर सेलिंग पर्पज़, आपने उनको बेचना होता है। तो जो भी चीज़ें आप कारोबार में ख़रीद के लाते हैं उनको बेचने के लिए, तो वो चीज़ें हमारी गुड्स होती हैं। जैसे अगर आपका कपड़े का काम है तो जब आप कपड़ा परचेज करके लाते हैं तो वो आपके लिए गुड्स और मर्चेंडाइज कहलाता है, क्योंकि वो आपने आगे सेल करना होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं? जैसे डेली लाइफ में भी हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो परचेजेस कहलाती हैं। तो व्हेन सेलेबल गुड्स आर ब्रॉट इन अ बिजनेस इट इज़ सेड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। सेलेबल गुड्स क्या होती हैं? कि वो चीज़ें जो आप बेचने के लिए लाते हैं बिजनेस के अंदर, तो जब आप वो खरीदते हैं बिजनेस के लिए तो उसको कहते हैं कि आपने परचेजेस की हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज परचेजेस रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड्स। समटाइम्स क्या होता है कि जब आप चीज़ें ख़रीद के लाते हैं तो उसमें कोई डिफेक्ट निकल आता है, आप घर आके देखते हैं, या बिज़नेस में जब वो चीज़ें आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया होता है, जब वो चीज़ पहुंच जाती है उसमें कोई डिफेक्ट होता है, या वो आपके कलर मैच नहीं कर रहा होता जो आपने चीज़ ऑर्डर की होती है, या उसमें किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट होता है, तो वो चीज़ें आप उस सेलर को दोबारा से रिटर्न कर देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज परचेजेज रिटर्न, और इसको हम रिटर्न आउटवर्ड्स इसलिए कहते हैं कि आपके बिजनेस से वो चीज़ें आउट हो जाती हैं। सो व्हेन द परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी सॉलिड रीजन इट इज़ नोन एज परचेजेज रिटर्न्स फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्यों लिखा है? कि खरीदार के लिए वो परचेजेज रिटर्न होगी, और इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि जिस सेलर ने आपको वो चीज़ें बेची हैं तो जब उसको चीज़ें वापस हो जाएंगी तो उसके लिए वो सेल्स रिटर्न होंगी, इसलिए यहाँ पे बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू का जिक्र लाजमी है। सेवंथ डेफिनेशन इज कैश परचेजेस, और एट्थ है क्रेडिट परचेजेस। दोनों में क्या फ़र्क है? नाम से ही पता लग रहा है। कैश परचेजेस का मतलब ये है कि जब आप किसी से चीज़ें खरीदते हैं उसी टाइम आप उसको कैश पे कर देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कैश परचेजेस। और जब आप सप्लायर से चीज़ें खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे, तो वो आपकी होती हैं क्रेडिट परचेजेस, मतलब आपने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेल्स। तो सेल्स क्या होती हैं? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस इट इज़ नोन एज सेल्स। जब आप कस्टमर को अपनी चीज़ें एक स्पेसिफिक प्राइस पे बेचते हैं तो इन बिजनेस टर्म और इन जनरल टर्म हम उसको सेल्स कहते हैं। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर। फर्स्ट 9 डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस ऑलमोस्ट 40 के करीब हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर सारी आपकी बेस है, सारे कंसेप्ट हैं। अगर आपको ये क्लियरली सारा समझ आ गया तो इट मीन्स दैट आपको आगे अकाउंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So students, if you have any confusion regarding any definition or paper pattern or something else, so you can discuss it with me. And again, I am telling you that the book recommended for accounting is Principles of Accounting by Sohail Afzal. So thank you so much. Allah Hafiz.